YouTube channel of IPM Careers. I am Aradhya. मैं IIM इंदौर 2015-20 बैच की पास आउट हूँ और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट इन आवर सीरीज टॉक विद टॉपर्स. सो वेलकम मिस्टर भुवन जायसवाल. हाउ आर यू फीलिंग? Thank you so much for having me here today, ma'am. I feel extremely ecstatic for this interview. Look forward to it. Lovely. It's not an interview. ऐसे अपन चिट चैट करेंगे. Of course. 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर आप कंफर्टेबल. Sure. चलेगा? Yes, ma'am. बिल्कुल. ठीक है. तो भुवन हमें बताइए कुछ अपनी जर्नी के बारे में. आपने पार्शियल ड्रॉप लिया, ऑनलाइन बैच में एनरोल किया आईपीएम करियर्स में, फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी, एक दिन आप कानपुर भी आए, स्पेशली रेजिडेंशियल इंटरव्यू बैच में आप हिस्सा बने उस बैच का, और फिर अब आप जा रहे हैं आईआईएम रांची. सो प्लीज अपनी जो जर्नी रही है थोड़ा सा उस पर रिफ्लेक्ट करिए, हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बताइए कैसा रहा. Alright, so शुरू से ही I was pretty much involved in extracurriculars and everything. And एक point आया जब I had this opportunity of co-founding a non-profit initiative by the name of Yuva Yotha. हाँ. So उस point पे when I became a part of that organization, I was the co-founder. I realized that somewhere or the other my interests that I want to work in the field of business, in the field of ये management. कब की बात है? When I was in my class 11th. 11th. ठीक. So उस point पे मुझे realize हुआ कि I want to be a manager, I want to work with people, I want to build a team of my very own. And उस point से मेरा जो business में interest था, that got rooted. उसके बाद I switched from JEE. I dropped that idea and I started to focus on studying abroad for business programs in abroad. Okay. Initially, okay. I did get some scholarship, but that was not enough. So I enrolled in the Shiv Nada University in Greater Noida. Okay. But still, at somewhere or the other, when I got to know of the IPM program, when I was in that university, I realized that this is something that would help me, that would give my career a good support, a good launch. So उस point से थोड़ा देखना शुरू किया है. फिर I came across IPM careers. And the fact that differentiated IPM careers was that everybody, mentors, Ashutosh sir हैं, आप, everybody is from IIMs. Everybody understands the culture. Everybody understands that why do we want to be there. And वहाँ क्यों जाना है, वहाँ जाने के बाद क्या होगा. So वो देख के फिर मैं राघव सर से मिला, जो लखनऊ के सेंटर के हेड हैं. And उन्होंने बिल्कुल मुझे गाइड किया from that very point. So I guess वहाँ से अब कैसे हुआ IIM रांची में, मतलब मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा that I am actually into IIM रांची. So yeah, it's been hell of a journey and it's wonderful. कितनी बड़ी बात है. IIM रांची में मात्र 60 सीट्स हैं. There are only 60 seats IPM कोर्स में IIM रांची में. And बहुत बड़ी बात है कि मतलब so many candidates why for those seats. कितना tough competition है, we all know that. तो बहुत बड़ी बात है. आपको मेरी तरफ से हार्टिएस्ट, मेरी तरफ से क्या IPM करियर्स की टीम की तरफ से एक बार थैंक यू सो मच. Congratulations for your achievement. अच्छा, आपने मेंशन किया आप पार्शियल ड्रॉपर थे, तो कुछ ड्रॉपर्स को आप एडवाइस देना चाहोगे प्लीज प्रिपरेशन रिलेटेड? Yes ma'am, sure. So to all the droppers who are watching this video, I believe that अपना कुछ भी प्रेप शुरू करने से पहले make a plan of action. एक गाइडेंस, एक पार्शियल ड्रॉपर के लिए एक गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, बिकॉज अदर पीपल कैन एनरोल इन कोचिंग एट एनी पॉइंट, बट आपको अपना कॉलेज भी मैनेज करना है कहीं ना कहीं, एंड आपको अपनी एकेडमिक्स ऑफ द कॉलेज एंड प्रिपरेशन भी मैनेज करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Apart from this, the second tip for everybody watching this video is talk to yourself. Whenever you are preparing, whenever you are going through a rough patch, before talking to anyone else, the teachers, the people who are there with you, talk to yourself. Try to figure out what is wrong or what is going wrong in your preparation according to yourself. Uske aage have some analysis and then talk to other people. So that's a major step, I believe. ये talk to yourself वाला काफी यूनिक है, मैंने ऐसे सुना नहीं है इतने छोटे बच्चों से, यंग बच्चों से ये चीज. मुझे इसके बारे में बताइए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा टॉक टू योर सेल्फ स्ट्रेटजी से? मैम, जहां तक मुझे याद है, इट्स बीन क्वाइट सम टाइम, बट जब भी मुझसे मेरे मार्क्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होते थे, या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक का मैं सम कर रहा होता था, नहीं होता था, तो मुझे कभी कभी रातों को नींद नहीं आती थी. कभी कभी कैंपस पे सुबह 5 बजे मैं निकल जाता था अकेले. मैं खुद से सेल्फी पे वीडियो चला के अपने आप से बात करता कि क्या गलत जा रहा है, भुवन दिस इज गोइंग रॉन्ग, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट. फिर कभी जब मुझे एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड मोटिवेट माई सेल्फ कि भुवन लुक फॉर द फ्यूचर, ठीक है, हो रहा है, अच्छे से होगा, धीरे धीरे होगा, विद टाइम इट विल हैपन. एंड आगे जब भी मुझे कुछ भी डाउट आता था, सो आई वुड गो टू माई हिडन फोटोज ऑफ कोर्स, एंड वहां पे जाके मैं वो वीडियो देखता था, तो मुझे थोड़ा अंदर से फील होता था कि प्रोबेबली if I do this right, if I do that right, something can go right. कैंपस बोले तो शिव नादर कैंपस. Yes, Shiv Nadar campus. निकल जाते थे Yes, पे. yes, of course. हाँ,
तो पढ़ाई के साथ साथ आपने प्रिपरेशन को मैनेज किया, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत Yes. बड़ी बात है। ग्रेट ग्रेट। हमें ये बताइए कि सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा आपकी प्रिपरेशन में? सबसे बड़ी चीज जो बच्चों को आप फोरवार्न करना चाहते हैं कि ये चैलेंजेस आते हैं और इनको आप ऐसे ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि यू कमिंग फ्रॉम वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस, इसलिए मैं चाहती हूँ आप खुल के एक्सप्रेस करो, अपनी जर्नी शेयर करो और हेल्प करो जितनी हो पाए ऑडियंस की। So first of all, I guess कि पहली चीज तो है that you should believe in two people. First is your very own self, and the other is God. If your efforts are consistent, if you're doing something with genuinity, right? If you're dedicated, you will of course get it right. But the second point is that there is a lot of content available online and everywhere. It is easy to grasp, but the point is कि you should be aware that if you're following the right thing or not. 50 चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि आप 50 चीजों से सीखो। अगर आपने किसी एक का हाथ पकड़ा है तो एंड तक उसका हाथ पकड़ के चलो। जैसे इस पॉइंट पे अलग अलग कोचिंग्स अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताती हैं, एंड कहीं ना कहीं वो काफी ओवरवेलमिंग हो जाता है फॉर पीपल लाइक अस, जिनके पास टाइम भी बहुत कम है, पार्शियल ड्रॉपर्स है, टाइम भी बहुत कम है और सब कुछ करना है। So कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, खासकर ड्रॉपर्स एंड पार्शियल ड्रॉपर्स। सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांट टू ब्रिंग टू ड्रॉप सम लाइट ऑन, दैट फोकस ऑन वन थिंग। किसी एक का हाथ पकड़ो, एंड तक उसके साथ चलो, एंड इट विल बेयर द फ्रूट। और एक चीज आपने कही जेन्युइनिटी, जी, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग दैट अप कि जेन्युइन होना कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर एन इंटरव्यू, राइट? व्हेन यू एंटर इनटू एन इंटरव्यू, एंड बच्चों को हम ये इस चीज के लिए बहुत ट्रेन भी करते हैं कि जस्ट बी योर सेल्फ, योर बेस्ट सेल्फ। यू डोंट हैव टू बी लाइक समवन एल्स, यू डोंट हैव टू बी लाइक मी, don't have to sound like me, right? So just be your genuine self. So इंटरव्यू पे अगर हम आते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन पे आते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, थोड़ा सा हमको बताइए। जी, सो ड्यूरिंग द इंटरव्यूज मेरा कॉलेज की छुट्टी चल रही थी, सो आई वाज बैक इन लखनऊ, एंड लखनऊ में भी हमारा सेंटर है आईपीएम करियर्स का। वहां पे आई वाज प्रिपेयरिंग विद राघव सर, वो मुझे रोज कुछ ना कुछ शीट या कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देते थे, रोज थोड़ी बहुत गाइडेंस 15 मिनट बैठा के वो अपने साथ कराते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्वाति मैम भी थी, दीपक सर भी थे, एंड आईपीएम करियर्स में जो ऑनलाइन हमारे जो आईपीएम इंदौर में जो रांची में सीनियर्स पढ़ रहे हैं, उनके साथ खुद हमारा इंटरव्यू होता है रोज। So mock interview, so that helps a lot. Perfect. And moreover, talking about the genuinity thing, I feel कि मैं कोई पढ़ाकू बच्चा बिल्कुल नहीं। To make that very clear, even though I get into Ranchi, I understand that I am more on the extracurricular side. Okay. So when you are giving the interviews, when you are preparing for the interviews, don't think कि मुझे अपने आप को पढ़ाकू दिखाना है तभी कोई मुझे लेगा। Just try to be your very own self. The things that you have accumulated over years of experience, try to present that as much as you can. क्योंकि the people who are taking your interviews वो सालों से वही काम कर रहे हैं। In the hint of a scene they can understand कि ये यहाँ गलत है, ये यहाँ फेक कर रहा है, ये यहाँ सच बोल रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने, ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत समझ जाते हैं। उनका काम ही यही, इतने साल उन्होंने इतने सारे इंटरव्यूज लिए, तो वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस चीज को। तो यू नो, in the way he is sitting right now, in the way he is talking, अभी आप उसकी authenticity देख सकते हो, उसका confidence देख सकते हो, right? तो मतलब I believe ये session बहुत useful होगा to all the aspirants out there, जो YouTube पर कभी सर्च करते हुए इस वीडियो पे आए और इस वीडियो को देखें, तो I believe उनके लिए हमने यहाँ पे काफी सारे golden tips दे दिए हैं। Thank you so much for giving us your time. Thank you so much for coming here all the way, you know, from Lucknow, and the honor is all ours to कि हमें आपके जैसे बच्चे मिले और हमें आपके साथ एक दिन के लिए आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आए थे कानपुर, तो हमें एक्सपीरियंस मिला आपके साथ यू नो एंगेज होने का। सो इट्स आवर ऑनर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड बाकी सबके लिए we will be back with yet another episode of Talk with Toppers. Please stay tuned. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, please do drop a like, share it with others जिनको हेल्प हो सके, सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, right? And I will see you soon with another episode. Thank you so much.